So yesterday we had studied till Gangetic dolphins. Okay, we are Priyanshu is late. Just one second. Priyanshu, you are late. Fine. So yesterday we had studied about this forest laws. We also studied about the ozone hole, how it has recovered a little bit. Today we'll be continuing on that in the environment only. So our first topic for today is fly ash utilization. Okay, so what is fly ash? Fly ash kya hoti hai? In different, brick kilns or in different construction works, this residual ash that remains, it is very harmful for the overall climatic sustainability. So we will study here what are the provisions with respect to the fly ash and what more needs to be done, what the government is doing, particularly Ministry of Environment and Forests. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change. For some of you who are not aware, earlier it was Ministry of Forests. Only in recent years, its nomenclature has been changed to MOEFCC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So recently, first of all, you have to understand, if a question comes that the fly ash utilization, it is being dealt by which ministry? So the answer has to be Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, it has recently released a notification under EPA. Two important points in the first line itself. Number one, what is the ministry? And number two, under which act? So the act is EPA 1986. EPA is Environment Protection Act 1986. So you have to just understand these 2 points here. What the new amendment does, it extends the compliance of fly ash utilization targets to new thermal plants. All right. 2021 में हमारे फ्लाई एश यूटिलाइजेशन रूल्स आए थे, तो उसके बाद जो हमारे थर्मल प्लांट्स that have been set up after that time, they are to be included under these new fly ash utilization rules. अब इसमें कुछ चीजें आपको जो याद रखनी है, फर्स्ट इज टाइम लिमिट क्या है इसका, देन व्हाट इज द लेगेसी एश, ठीक है, और सोलर और विंड पावर प्लांट्स के विद रिस्पेक्ट इसमें क्या प्रोविजंस है. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम लिमिट. द न्यू थर्मल प्लांट्स TPPs, they will have a time period of 4 years. इनके पास 4 साल का वक्त होगा to achieve 100% fly ash utilization. तो 100% fly ash utilization क्या है? For example, ये fly ash को properly dispose off करना है, ताकि वो environment जैसे कई जगह पे it will create जो leaves के जो स्टोमेटा होता है इसको ब्लॉक कर देगा, फोटोसिंथेसिस इम्पैक्ट करेगा, और भी इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी करता है. तो उस तरह से जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, दे विल हैव टू यूटिलाइज दीज फ्लाई ऐश विद इन 4 years. सो दिस इज द टाइम लिमिट दैट हैज बीन सेट. दूसरा, लेगेसी ऐश क्या होती है? लेगेसी ऐश का कॉन्सेप्ट ये है कि जो ऐश प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड हुई है, फॉर एग्जाम्पल किसी थर्मल प्लांट ने 1 साल में जितनी ऐश प्रोड्यूस की, उसने वो पूरी उसको यूटिलाइज नहीं किया अभी, इट इज स्टिल इन द एनवायरनमेंट इन अनसस्टेनेबल फॉर्म. तो उस लेगेसी ऐश के बारे में क्या प्रोविजन है? द लेगेसी ऐश स्टोर्ड विद द थर्मल प्लांट, इसको 10 साल के अंदर यूटिलाइज करना है, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से. तो ये 2 पॉइंट्स आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए. पहला कि टाइम लिमिट 4 साल का है, ठीक है, टू अचीव 100% फ्लाई ऐश. और जो पुरानी लेगेसी ऐश थी वो आपको 10 साल के पीरियड में यूटिलाइज करनी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022. ऑलराइट. और क्या किया अमेंडमेंट ने? The amendment allowed activity in solar and wind power plants as per the guidelines by CPCB. इसमें 3 साल की लिमिट है, ठीक है. तो 3 प्रोविजंस हैं, एक तो टाइम लिमिट का हो गया, एक लेगेसी ऐश का हो गया, और सोलर और विंड पावर प्लांट्स के लिए विद इन 3 years you have to utilize that fly ash. All right, moving on. अब देखिए कुछ पावर प्लांट्स जो 3 नवंबर 2009 से पहले एस्टैब्लिश हुए थे, उन पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है. दिस provision is not applicable on those power plants established before prior to 2009. Also, the amendment bans any coal and lignite based TPPs from establishing
or designating any new operational ash ponds. ठीक है, अब कोल और लिग्नाइट इज वेरी हाईली पोल्यूटिंग, तो ये अमेंडमेंट जो लाई है फ्लाई ऐश पॉलिसी में, इसने एक न्यू आप ऐश पॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल ऐश पॉन्ड्स क्या होगा कि जहां पे आपने ऐश को डिस्पोज ऑफ करना है, यू आर डिस्पोजिंग ऑफ योर ऐश हेयर, ओके। तो एक थर्मल पावर प्लांट में अगर ऑलरेडी एक ऐश पॉन्ड है तो नया बनाने की परमिशन नहीं देनी है उसको। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द थिंग। इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी की तरफ ज्यादा जाना है। अगर हम फ्लाई ऐश के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझे, व्हाट इज फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश होती क्या है? तो इट इज अ पर्टिकुलेट मैटर, पीएम। पीएम आपने पीएम 2.5 और पीएम 10 के बारे में सुना रहेगा। दीज आर वेरी फाइन पार्टिकल्स which cause lot of environmental pollution. So these are particulate matter produced from the combustion of coal. So coal की combustion से ये thermal power plants में produce होता है। दूसरा देखिए, mineral impurities होती है ना जो कोल में, they come out of combustion chamber and then cool and harden. For example, कोल का ब्लॉक हो गया, this is a coal block, ठीक है। when it is used, तो एक कुछ रेजिड्यू रह जाएगा ना नीचे, रेजिडुअल जो कोल रह जाएगा, that will convert into what you call as fly ash, which is actually very harmful. अगर आपको कंपोजिशन का ज्यादा याद नहीं रखना है, बट क्या क्या है, जस्ट हैव अ रफ आइडिया। सिलिका विल बी वन ऑफ द कंपोनेंट्स, देन यू हैव एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, arsenic, lead. These will be found in trace. So majorly if you have to remember, it will be, देखिए सिलिका तो होता ही है, ठीक है, सिलिका तो होगा ही, सिलिका विल डेफिनेटली बी देयर। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम और आयरन भी होगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन, दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ एज वेल, ओके। अब बेसिक थोड़ा सा बैकग्राउंड के बाद, आपकी कितने तरह की फ्लाई ऐश होती है? वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉमन फ्लाई ऐश। फर्स्ट वन इज क्लास एफ एंड सेकंड इज क्लास सी। जस्ट इसमें समझ लेना आपको ये डिवाइड कैसे, इसको डिस्टिंक्शन हमने कैसे की हुई है, कैल्शियम कंटेंट और कार्बन कंटेंट के बेस पे। जो क्लास एफ है, दैट हैज लो कैल्शियम एंड कार्बन कंटेंट इज लेस देन 5%। और जो क्लास सी है, दैट इज हाई कैल्शियम एंड कार्बन इज लेस देन 2%। इसमें याद अगर आपको रखना है, जो एफ क्लास है उसमें कैल्शियम कम होगा, बस ऐसे आप याद रख लें, कैल्शियम विल बी लेस, एंड क्लास सी कैल्शियम विल बी मोर, हाई कैल्शियम विल बी देयर, ओके। बाकी कार्बन एक में 5 एक में 2% है। इतना डिटेल में याद तो रखना नहीं है, बट आपको बस रफ आइडिया, एक असेसमेंट के लिए आपको ये याद रखना है, ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन। अभी आपने ये न्यूज सुनी होगी कि कुछ कुछ आई थिंक सम मंथ्स बिफोर you had seen that there was this Titanic submersible in which 5 people were on board. All of them died. So these expeditions keep taking place to map the bottom of the bottom floor of the ocean. ठीक है, और उसको उसकी जो उसमें टोपोग्राफी क्या है, वहाँ क्या कौन कौन से लैंडफॉर्म्स है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम एंड अगेन डिफरेंट जो एजेंसीज है, जैसे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, यूएस में देयर इज एनओएसी, नेशनल ओपन ओशियनिक, कुछ नाम है उसका, आई एम फॉरगेटिंग इट राइट नाउ। तो ये जब जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दे ट्राई टू फाइंड द डिफरेंट मिनरल कंपोजिशंस which can help us understand the formation of earth as well as जो न्यू मिनरल्स, जैसे मैंगनीज, मोलिब्डेनम, ये आपके अर्थ के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होते हैं, जो ओशियनिक फ्लोर में या कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में ये नोड्यूल्स मिलते हैं वहां पे, देयर नोड्यूल्स आर फाउंड लाइक देयर, ठीक है। तो दे आर रेयर मेटल्स विच आर यूजफुल इन लॉट ऑफ, मे बी चिप्स बनाने में काम आ जाएगा, जो चिप्स खाने वाली नहीं, चिप्स जो हम उसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में, तो चिप्स बनाने में काम आ जाएगा, और किसी न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स में भी यूज होता है, या एविएशन में कुछ मशीनरी बनाने में काम आ जाते हैं। तो द थिंग इज, व्हाई वी आर एक्सप्लोरिंग मार्स मिशन भी क्यों हम जा रहे हैं, चंद्रयान मिशन भी क्यों हो रहा है, बिकॉज वी वांट टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ बेटर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द formation as well as the composition of better,
so that we can plan better for the coming generations. तो ये एक समुद्रयान मिशन अभी लॉन्च हुआ था इंडिया में, टू डेवलप अ सेल्फ प्रोपेल्ड मैन सबमर्सिबल. मैन्ड होगी ये, इट विल बी मैन सबमर्सिबल. इसका नाम बस याद रखें आप, नाम क्या है इसका? नाम है आपका मत्स्य 600. तो ये नाम आप याद रखें, मत्स्य 600. ओके, मत्स्य 600 इसका नाम है. टू कैरी आउट 3 ह्यूमन बींग जाएंगे इसमें. नाम याद रखेंगे, 3 ह्यूमन बींग्स कोई कैरी करेगा, 3 ह्यूमन बींग्स. कितनी डेप्थ तक? 6,000 मीटर्स बिलो द सी लेवल. ठीक है, तो ये डीप ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए इसको यूज किया जाएगा. अब ये कौन डेवलप कर रहा है? NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई. This is primarily the organization that caters to ocean-based research activities. अगर आपको पूछा जाएगा NIOT, ये क्वेश्चन आ भी सकता है IB के एग्जाम में, तो आने के चांस रहेंगे. NIOT के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इट इज इन चेन्नई. ठीक है. अब इंडिया जो हमारा सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन है, अब आपको अगर आइडिया होगा कुछ कुछ इन चीजों का, जैसे आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मैप में ही बना के समझाता हूँ आपको. ठीक है, अभी देखिए, अगर ये आपकी जो कोस्ट लाइन है, दिस इज योर कोस्ट लाइन. ओके, अब कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, जो फर्स्ट जो है ना, 12 नॉटिकल माइल्स एक यूनिट है जिससे हम जो ओशियानिक, जो सी सरफेस, सी में जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं. जो पहला ये 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल वाटर. ये आपका टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है इसको. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट 12 जो आपका नॉटिकल माइल्स होगा, दैट इज कॉल्ड कंटिगुअस जोन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज कंटिगुअस जोन. एंड फर्दर बियॉन्ड दिस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से फ्रॉम दी, ये टोटल आपका जाएगा 200 नॉटिकल माइल्स तक. दैट इज कॉल्ड एज EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका एक कंट्री का जो एक कंट्री का जैसे जो टेरिटोरियल एरिया है, उसके पास उसकी जो मैरीटाइम टेरिटरी है, जो उसकी मैरीटाइम टेरिटरी है, ये एक्सटेंड होती है EEZ तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक. उसके अंदर जो भी एक्सप्लोरेशन होगी या मर्चेंट शिप्स आएंगी, वो सब जो आएगा, तो वो कौन मैनेज करता है? ये हम इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया मैनेज करेगी. इसके बियॉन्ड, अब इसके बियॉन्ड का जो एरिया है सारा, हाई सीज कहते हैं उसको, हाई सीज. अब उस हाई सीज में जो भी एक्सप्लोरेशन होगी, दैट इज मैनेज्ड बाय अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी. अब अनक्लॉस के तहत जो इंडियन ओशन बेसिन का एरिया है, दैट इज डिवाइडेड अमंग्स वेरियस कंट्रीज, एंड इंडिया को उसमें कितना मिला वो हम देखेंगे. तो बेसिकली आपको ये समझाने के लिए आई ट्राई टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट देयर. ठीक है, तो मत्स्य 600 NIOT चेन्नई, इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अलॉट हुआ है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में. ठीक है, बाय द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको ये सवाल पूछेगा क्या, आपको ये ध्यान रखना है. व्हाट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ना, व्हाट क्वेश्चंस. पहला हो गया आपका कि NIOT का हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है, मत्स्य 600. इट विल कैरी 3 ह्यूमन बींग्स टू अ डेप्थ ऑफ 6,000 मीटर्स. सेकेंडली, इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटालिक नड्यूल्स. अब करता कौन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हु अलॉट्स, ये अगर आपको UPSC में ये सवाल पूछा भी गया हुआ एक बार, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ISA, जो भी मरीन एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी, दे आर मैनेज्ड बाय ISA, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं. इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम फॉर पॉलीमेटालिक नड्यूल्स. अब मैंने पहले बता दिया आपको, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज,
जो भी हैं ये सब वहां पे मिलेंगे माइका। फिर कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। अब अकॉर्डिंग टू वन सेंसस, हर साल ओशन में 800 मिलियन टन इतना प्लास्टिक डंप किया जाता है ओशन में। तो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द सस्टेनेंस ऑफ मरीन लाइफ। तो इस सी डीप सी डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। दूसरा, इंजीनियरिंग डिजाइन फॉर ऑफशोर थर्मल एनर्जी। ओटेक ओटेक होती है ना, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। जो टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं जो ओशनिक वेव्स में, जो ओशनिक वाटर में इन इट्स सब्सिक्वेंट लेयर्स, ठीक है, जो ऊपर वाली लेयर होगी उसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होगी, वो नीचे जितना जाते जाओगे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी आपको। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको समझ लें, दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर आप इतना जोन मान ले, जो ऊपर वाला सर्टन जोन, दिस जोन वी कॉल एज एक्स डिस्टेंस, ओके। इसके नीचे का अगर हम मान लें, दिस विल बी दिस विल बी रिलेटिवली कोल्डर। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो वो और ठंडा होगा। क्यों? रीजन, यहाँ सनलाइट थोड़ी पेनिट्रेट करेगी, यहाँ थोड़ी और कम करेगी, यहाँ थोड़ी और कम करेगी, नीचे जाते जाते इट विल बी वेरी वेरी कोल्ड। कोल्ड एंड डेंस वाटर, जितना पानी ठंडा होता जाएगा उतना डेंस होता जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि व्हाट इज द पॉइंट है। सो यहाँ पे देखिए, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इससे आपका जो ओशियनिक थर्मल एनर्जी हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। ओके। तो ये जो आपकी मत्स्य 6000 है, इसकी 12 घंटे की एंड्योरेंस रहेंगी, 12 घंटे तक ये ऑपरेशनल पीरियड है इसका। और 96 घंटे इमरजेंसी के केस। इतना नहीं याद करना, बस आपने ये याद रखना है कि जो मैंने मेन डिटेल्स बता दी। और किस मिशन के अंडर है? इट्स ए डीप ओशन मिशन के अंडर ये एक प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड एनआईओटी का, एनआईओटी चेन्नई। ओके, वंडरफुल। Students are still entering very late. From tomorrow be on time. UN declared 2021 as a decade of oceanic science for sustainable development. तो ये याद रख लीजिए थोड़ा सा कि 2021 को has been declared as a decade of ocean science for sustainable development. अब इसमें अम्ब्रेला स्कीम कौन सी है? ओशन सर्विसेज मॉडलिंग। नो नीड टू रिमेम्बर इट। ठीक है। अभी हमने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसको डिटेल में समझेंगे वो है क्या। ठीक है। ओके, सो इट इज एन autonomous international organization. Just remember that. Established, देखिए कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में आपको एक चीज पढ़नी है कि ये एक एनजीओ है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये चीजें पढ़नी। तो इस केस में दिस इज एन ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली, एस्टैब्लिश किस एक्ट के अंडर हुई? अब जैसे हमने कल पढ़ा था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, इट इज अंडर WLPA 1986। अभी हमने कुछ जस्ट पढ़ा है ईपीए के अंडर क्या क्या हुआ है ना, वो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपका फ्लाई एश पॉलिसी थी जो, ठीक, वो याद रखनी है। तो ये 1982 में अंडर अनक्लॉस, अभी मैंने आपको बताया अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। ठीक है। ये 1984 में बना इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इसकी लेटर एग्रीमेंट कब हुई? एक एग्रीमेंट और अमेंडमेंट हुई थी 1994 में। अब दूसरी चीज जो याद करनी है इसमें, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं किंगस्टन, जमैका। जमैका में इसके हेडक्वार्टर्स है। इट इज इट इज मैंडेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट। तो मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, दो तीन चीजें। इट्स एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर अनक्लॉस 1984, हेडक्वार्टर्स किंगस्टन जमैका, एंड मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है। अभी जो लोग उत्तराखंड से हैं, somebody is from उत्तराखंड, तो आपने देखा होगा जोशीमठ सब्सिडेंट लैंड सब्सिडेंस हुआ था। ठीक है। तो क्या है वो, क्या हुआ क्या था? सब्सिडेंस जनरली क्या होता है ना, often caused by removal of water, oil, natural gas and mineral resources out of the ground by pumping, fracking, mining activities. अब क्या होता है, जो हमारा ये अगर आपका माउंटेन स्लोप है ना, दिस इज अ माउंटेन स्लोप, तो आप इस माउंटेन स्लोप को इरोड करते जाओगे, यू कीप इरोडिंग इट। यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो
इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, इसकी जो स्टेबिलिटी है, आइसोस्टैटिक स्टेबिलिटी, वो डिस्टर्ब होगी। इससे क्या होगा? आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस होगा। आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस इज क्रिएटेड। ठीक है। उससे क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने उसका जो नेचुरल जो स्लोप एंगल वो डिस्टर्ब कर दिया, तो उसके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं दे बिकम लूज एंड दे आर मोर ससेप्टेबल टू सबसिडेंस एज वेल एज लैंडस्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड्स क्यों होती हैं? एक तो स्लोप बहुत स्टीप होता है, आपने उसकी जो स्लोप की जो स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर दिया। जैसे आप 4 लेन हाईवे बना रहे हो, यू आर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। डैमिंग से क्या होता है? अब वाटर है पर्कुलेट करता है ना सॉइल में, एक जगह आपने पानी इकट्ठा कर दिया, तो इन द सराउंडिंग एरिया द वाटर पर्कुलेट्स। दूसरा, उससे अर्थक्वेक्स का भी एक नुकसान रहता है, क्योंकि उससे भी एक आइसोस्टैटिक डिस्टर्बेंस होती है सराउंडिंग एरियाज में। और एक और चीज है, एनक्रोचमेंट ऑफ द लैंड। फॉर एग्जाम्पल अभी हिमाचल में जो फ्लड्स आए, तो एनक्रोचमेंट ऑफ द लैंड पूरा एक्सट्रीम तक हो चुका, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी जो पानी को जो रिवर का फ्लो है उसका जो बेसिन है वो श्रिंक कर गया। जो लेवीज बनती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, ये रिवर का चैनल है, अगर दिस इज अ रिवर, तो रिवर के अराउंड ये लेवीज होती हैं। दिस इज अ लेवीज। ठीक है। तो ये लेवीज प्रोटेक्ट करती हैं, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, जो साइड पे लेवीज हैं ये इंश्योर करती हैं कि आगे इसको फ्लडिंग ना हो। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड, दीज लेवीज आर ऑल्सो रिड्यूस्ड। तो ये ऊपर से खत्म हो चुके हैं, तो फ्लड तो आएगा ना, फिर आपका पानी ओवरफ्लो करेगा, फ्लड्स आएंगे, तो दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है। अभी जोशीमठ में क्या हुआ, अभी थोड़ा सा वो देखते हैं। जोशीमठ में वहां पे एक तो एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये एस्टेब्लिश हुआ। अब आपको बस ये याद रखना है, आपको ये बता देगा कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है। तो उत्तराखंड में, इट इज उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में। और इसकी वजह से यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर तो हो ही रहा है। अब जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस पे आप जाओगे, देयर इज लॉट ऑफ टूरिस्ट फुटफॉल, बिकॉज ऑफ विच there are a lot of pressure on the scarce and fragile ecosystem of the fragile ecosystem of these hill areas. Okay. नाउ जियोलॉजिकल, यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे उसने ये बताया कि जो 80% ऑफ लैंड सबसिडेंस अक्रॉस द वर्ल्ड क्यों होता है? एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ओके, वंडरफुल। ठीक है, अब जोशीमा की टोपोग्राफी अगर हम थोड़ी सी समझें, काइंडली म्यूट योर, समवन हु इज जॉइंड प्लीज म्यूट योर। जोशीमा के स्लोप्स में, मिड स्लोप्स है, वहां पे कौन कौन से आपके हिल्स हैं वो थोड़ा सा याद रखना है। और स्ट्रीम्स कौन कौन सी है? करमानसा और धकनाला स्ट्रीम्स है। और धौलीगंगा और अलकनंदा रिवर उसके साउथ और नॉर्थ में। ठीक है। ऊपर इसके अलकनंदा है, नीचे इसके धौलीगंगा है। ठीक है। इसके वेस्ट में आपकी करनासा है, और राइट में धकनाला। तो यहाँ पे आपका बीच में आप समझ लीजिए कहीं पे आपका जोशीमठ का जो एरिया है। ठीक है। और एक और वहां पे फॉल्ट लाइन है, वक्रता फॉल्ट। इतना नहीं याद रखना आपको, बस आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे एक तो एनटीपीसी का विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से, लैंड इंक्रोचमेंट की वजह से, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर इंक्रोचमेंट की वजह से। अब अगर आप यूपीएससी का एक कोई मेंस लिख रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ये आप डेटा वहां कोट कर सकते हैं कि यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे 80% लैंड सबसिडेंस अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉज्ड ड्यू टू ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो आपको अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करना है विद सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स, सो दैट इट कम्स अक्रॉस एज मोर नुआंस्ड। ओके। अब और क्या क्या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो हमने देख लिया तपोवन विष्णुगढ़ एचईपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 520 मेगावाट, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। अगर आपको थोड़ा आइडिया नहीं है, तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट वो है जैसे हम डैम्स बनाते हैं, पानी को, रिवर को डैम कर लेते हैं, फिर टर्बाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बट रन ऑफ द रिवर में हम डैमिंग नहीं करते, हम जो वाटर का फ्लो है, जो रिवर का फ्लो है, उसी को यूटिलाइज करते हैं। वी ट्राई टू यूटिलाइज फ्लो ऑफ द रिवर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाट इज द रन ऑफ द रिवर। तो ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं? धौली गंगा रिवर में। ठीक है।
धौली गंगा रिवर में तपोवन, विष्णुगढ़, ये आपको बस याद रखना है कि रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट है, धौली गंगा के ऊपर है, और ये 520 मेगावाट है। ठीक है, मूविंग ऑन। फिर बीआरओ। बीआरओ क्या, आप देखो, आप आईबी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको बीआरओ का तो रोल पता रहना पड़ेगा। जो भी बॉर्डर के रोड्स हैं वो बीआरओ कंस्ट्रक्ट करता है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये आपको एमओआरटीएच के अंदर नहीं आता है। तो हिलांग मारवाड़ी बाईपास एक प्रोजेक्ट है, वो वहां पे जोशीमठ के आसपास वो बन रहा है। 6 किलोमीटर का एक कंस्ट्रक्शन है फ्रॉम हिलांग टू जोशीमठ। इसकी वजह से भी काफी वो जो लैंड का जो सस्टेनेबिलिटी जो मैंने आपको पहले समझाया वो हो रहा है। फिर एक कमेटी थी जो जोशीमठ से रिलेटेड, बस इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम है आपका एमसी मिश्रा कमेटी। एमसी मिश्रा, एमसी मिश्रा कमेटी 1976। So what it did, it recommended for reconnaissance of land subsidence. तो इसने बोला था कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए कि आप जो लैंड सब्सिडेंस होने की बात इन्होंने 1976 में ही कर दी, ताकि अभी आप प्रोटेक्शन मेजर्स लीजिए ताकि थोड़ा सा इस चीज को अवर्ट किया जा सके। बट वी ह्यूमंस डोंट लर्न, नो, दैट इज द थिंग। अब लार्ज डैम्स के बारे में इंडिया में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। इंडिया में लार्ज डैम्स का क्या स्टेटस है। तो यूएन की स्टडी ने हाईलाइट किया है कि 3700 डैम्स है इंडिया में जो लूज कर देंगे 26% ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी बाय 2050 सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन क्या होती है, रिवर आ रहा है ऊपर से, रिवर आ रहा है, ठीक है, रिवर आ रहा है हिल स्लोप से ना, साथ में क्या लेके आ रहा है, सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स लेके आ रहा है वो। तो सेडिमेंट्स क्या है, नीचे इसके फ्लोर पे ना दे विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग, जिसकी वजह से पानी, रिवर की जो कैरिंग कैपेसिटी है। सिमिलरली डैम्स में भी, डैम्स में आके जो सिल्ट इकट्ठी होती जाएगी नीचे, नीचे इकट्ठी होती जाएगी सिल्ट, तो डैम्स की जो वाटर कैपेसिटी कम हो जाएगी ना। तो दैट इज 26% ऑफ द डैम्स इन इंडिया will lose, dams will reduce 26% of the total capacity by 2050. This will cause floods. This will cause a lot of problems for the downstream areas. जो उन डैम्स के आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए सस्टेनेंस बड़ा मुश्किल होने वाला है। ठीक है, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन कंपाइल करता है और मेंटेन करता है डेटा ऑफ लार्ज डैम्स। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आप साथ साथ में नोट करते जाइए इसको। पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, लेकिन आपको ये शॉर्ट नोट साथ साथ में बनाइए, अपना काम रिड्यूस कीजिए। ठीक है, तो CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, इट कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द रजिस्टर ऑफ डैम्स। ठीक है, तो इंडिया में रजिस्टर ऑफ डैम्स कौन करता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स, NRLD, इट इज डन बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, मूविंग ऑन। नाउ CWC हैज डेवलप्ड वेब बेस्ड असेसमेंट टूल्स। क्या नाम है उस टूल्स का, एक तो है धर्मा, दूसरा है शाइस। अब धर्मा क्या है, धर्मा इज डैम हेल्थ रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, बस ये याद कर लीजिए इसका नाम, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। और सीजमिक हजार्ड एनालिसिस सिस्टम। तो ये दो सिस्टम्स हैं, किसके हैं, धर्मा और शाइस, शाइसिस वट एवर यू कॉल इट, CWC का, सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, जिन डैम्स की हाइट 10-100 मीटर से ज्यादा होती है और उनकी कैपेसिटी, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करें। ठीक है, अभी आ जाए एक, इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हमारा एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो ये समझना है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको डील करेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, दिस विल डील विद द इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, इसने बिड्स इनवाइट की थी कि ग्रेटर निकोबार में आपको ये पोर्ट बनाना है, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट के लिए। तो ये कहाँ पे प्लान किया जा रहा था, गैलाथिया बे, गैलाथिया बे ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल वाटर, डेप्थ ऑफ मोर देन 20 मीटर्स है यहाँ पे। और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, जो हमारा कोलकाता पोर्ट है उसको रीनेम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, और ये एक नोडल एजेंसी एक्ट करेगा। अब ये जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ICTP इन दी गैलाथिया बे, इन दी गैलाथिया बे इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, इट विल बी
मैनेज्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट. So it will be a nodal agency for this. All right, fine. तो किस मॉडल पे बनेगा ये? पीपीपी मॉडल पे बनेगा ये, ठीक है. और मोस्ट लाइकली लैंडलॉर्ड मॉडल हम पढ़ेंगे इकोनॉमी में जब आप वहां आएंगे, ठीक है. ब्रीफली हम देख लेते हैं कि इसमें पोर्ट अथॉरिटी एक्ट्स एज रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है. तो इसमें जो कंट्रोल करता है पोर्ट अथॉरिटी, ऑटोनॉमी नहीं दी जाती जो प्राइवेट कंपनीज को. प्राइवेट कंपनीज आर कंप्लायबल टू दी पोर्ट अथॉरिटी, वाइल पोर्ट ऑपरेशंस आर कैर्ड बाय प्राइवेट कंपनी. ऑपरेशंस वो करेंगे लेकिन कंट्रोल किस करेगा? पोर्ट अथॉरिटी का. फॉर एग्जांपल इन दिस केस श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जैसे जेएनपीटी है आपका, ठीक है, मारमगांव पोर्ट है आपका, विशाखापट्टनम पोर्ट है. तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, वो कैसे मैनेज किया जाता है टू इंश्योर इफेक्टिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ कस्टम्स एज वेल एज अदर जो स्मगलिंग वगैरह होती है उसको भी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है. अभी आ जाए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है जो आपका, उसमें और भी जो प्रपोजल्स हैं, ग्रीनफील्ड सिटी बनानी है आपने, ये आईसीटीपी जो हमने पढ़ लिया. दूसरा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, पावर प्लांट बनाएंगे, टाउनशिप बनाएंगे जो वहाँ पे पर्सनल काम करते हैं. तो ये थोड़ा सा जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए काफी है. अभी ग्रेट निकोबार एरिया इज वाज डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 1989, ठीक है. यूनेस्को का एक प्रोग्राम है एमएबी प्रोग्राम. यूनेस्को हैज अ प्रोग्राम ऑफ एमएबी विच इज मैन एंड बायोस्फीयर. वो वर्ल्ड ओवर सिलेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व्स को इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स में डालता है ताकि उनकी कंजर्वेशन की जा सके. तो एंटायर गैलाथिया बे इट वाज डी नोटिफाइड बाय स्टैंडिंग कमेटी टू मेक. अब डी नोटिफाई का मतलब, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है. प्रोटेक्टेड एरिया मतलब जहाँ पे आप ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ये सब नहीं कर सकते. तो एक स्टैंडिंग कमेटी आपकी बिठाई थी और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है. स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसने अलो कर दिया. डी नोटिफाई का मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी, अलो कर दिया कि यहाँ पे आप आईसीटीपी बना सकते हो. क्योंकि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पे आपको कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाना है, तो आपको उसका लैंड यूज चेंज करना पड़ता है. लैंड यूज लैंड यूज रूरल से अर्बन कर दिया और यहाँ पे इसको प्रोटेक्टेड एरिया से नॉन प्रोटेक्टेड में, लाइक नॉर्मल एरिया में ले आए ताकि आप यहाँ पे आईसीटीपी बना सके, ठीक है. एक मोर इम्पोर्टेंट चीज है आपकी यहाँ पे जो याद रखने वाली है, ये गैलाथिया बे है ना, ये नेस्टिंग साइट है जाइंट लेदर बैक टर्टल्स. तो ये आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो लेदर बैक टर्टल्स हैं ये कहाँ मिलते हैं? इट मोस्टली दे आर फाउंड हियर, गैलाथिया बे. ऑलराइट, मोर देन 90% ऑफ द आइलैंड इज डेजिग्नेटेड ट्राइबल रिजर्व अंडर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. दो ट्राइब्स हैं यहाँ पे, निकोबारीज और शोम्पेन ट्राइब. फाइन. और शोम्पेन क्या आपकी पीवीटीजीज है. पीवीटीजी क्या होती है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. इंडिया में 13 स्टेट्स में अराउंड आई थिंक 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं पीवीटीजीज. उसमें सबसे ज्यादा उड़ीसा में है 13. 13 ट्राइबल ग्रुप्स आर इन उड़ीसा. ओके, जस्ट आपको याद रखना है. ट्राइबल से रिलेटेड कमेटीज कुछ कुछ, जैसे जाजा कमेटी है, यूएन देवर कमेटी है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. फिर एक दिलीप सिंह भूरिया कमेटी है. तो ये कमेटीज क्या है? फिर पीसा एक्ट हमने कल भी देखा, ठीक है. ये सारे प्रोविजंस क्या करते हैं? हमने पीवीटीजीज पहले ब्रिटिश टाइम पे इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था, बट हमने इनको इसको डी नोटिफाई करके इनको हमने पीवीटीजी कैटेगरी में डाला ताकि इनके जो कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके और इनको भी डेवलपमेंट के लूप में लाया जा सके ताकि वी कैन इंश्योर ये भी, इनकी भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो. ओके. और ये सीज्मिक जोन 5 में, अब इंडिया के 5 सीज्मिक जोन है, पर्टिकुलरली 4, 1 नहीं है, 2, 3, 4, 5. अभी आप पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी में जाएंगे तो अर्थक्वेक जोन्स कौन से होते हैं, जम्मू कश्मीर कहाँ पे लाइक करता है, दिल्ली कहाँ पे लाइक करता है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे लाइक करता है, ठीक है. ये इंडोनेशिया के बांडा आर्क के पास है, नॉट इम्पोर्टेंट. कमेटी हैज नोटिफाइड 3 न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. अब जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसने आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे 3 नई, एक आप बना सकते हो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. वो कौन कौन सी होंगी? लिटिल निकोबार, वही लेदर बैक टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. फिर एक मेंचर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाओगे मेगापोर्ट्स के लिए, और मेराव आइलैंड्स फॉर कोरल्स. ओके, दिस इज लिटिल बिट अबाउट इट. और इंडिया ने ना सक्सेसफुली रीलोकेट किया है, आपका ट्रांसलोकेट किया है कोरल रीफ फ्रॉम गल्फ ऑफ मन्नार टू गल्फ ऑफ कच्छ. गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? हाँ, गल्फ ऑफ मन्नार आपको मैं बताता हूँ. देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार है ये वाला एरिया, जो तमिलनाडु वाला एरिया, ठीक है.
और गल्फ ऑफ कच्छ, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, दिस इज गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, जब मैप को भी साथ साथ में अपनी एटलस साथ में रख ले, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि कौन कौन सी चीजें हम पढ़ रहे हैं। नेशनल लॉजिस्टिक्स मरीन पोर्टल मरीन, तो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवेज एंड पोर्ट्स, इसने इनॉग्रेट किया है लॉजिस्टिक्स पोर्टल। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल होगा ये, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो भी जो कॉस्ट्स इन्वॉल्व हैं, जो सामान वहां पे शिपमेंट्स आती जाती हैं, उनको कैसे आप मैनेज करोगे, ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल के अंडर होता है। ओके, एंड इसमें 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये 2 मिनिस्ट्रीज हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ रही है अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राई लैंड रिपोर्ट। ठीक है, ये किसने रिपोर्ट दी आपकी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम। ये एफएओ क्या है ना, यूएन की एक बॉडी है ये एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में काफी इनिशिएटिव्स लॉन्च करती है। तो इसके ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम के अंडर ये फॉरेस्ट्री का जो स्कीम लॉन्च किया है, टू इम्प्रूव रेजिलियंस ऑफ ड्राई लैंड। ड्राई लैंड क्या होते हैं, जहाँ पे बारिश नहीं होती है ज्यादा, विच आर मोर सॉरी इरिगेशन नहीं होती है, वो बारिश पे ही सस्टेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये जो राजस्थान वाला एरिया हो गया, या जो हिंदी हार्टलैंड, ये एमपी वगैरह वाला एरिया, कुछ वहाँ पे हम बारिश नहीं होती है, दीज आर मोर रेन फेड एंड डिपेंडेंट ऑन मानसून। और कुछ जगह जहाँ पे जैसे पंजाब है, इरिगेशन बहुत है, दीज आर नॉट ड्राई लैंड एरियाज, दीज आर नॉर्मल इरिगेटेड एरिया। ओके, तो ये आपका है यहाँ पे अभी सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, साइम इनिशिएटिव। तो आपका एक साइम इनिशिएटिव है, ये क्या है, ये श्रिम्प कल्टीवेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, श्रिम्प एंड मैंग्रोव रेस्टोरेशन, श्रिम्प्स को मैंग्रोव्स के साथ एक साथ में ग्रो करना, ताकि दोनों का एक कंजर्वेशन हो सके। तो किसने स्टार्ट किया है, नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, ग्लोबल नेचर फंड। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। कुछ डाउट है तो हम डाउट्स लेंगे। अभी आई एम अनम्यूटिंग यू ऑल, यू कैन आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। Any doubt, guys? Any issue? Any issue as of now? Doubts है तो पूछ लीजिए. We are breaking for 2 minutes. No doubt. Anyone else has any doubt? No, sir, no doubt as of now. Clear हो रहा है आपको जो हम पढ़ रहे हैं? Yes, sir. Speed is okay. I'm going fast, or it is perceptibly fine for you? No, sir, it's absolutely fine. Okay, wonderful. Is that Priyanshu, right? No, sir, this is Harpreet. Okay, Harpreet. Fine. So shall we continue? Yes, sir. Okay, wonderful. Fine. So we studied about the SIME initiative. Okay, moving on. फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, ये एक वाटर विजन डॉक्यूमेंट आपका ये साइन हुआ था भोपाल में। ठीक है, इसका सब पोर्टल था जल इतिहास, नॉट इम्पोर्टेंट, आप बस ये पढ़ लें कि ये WRIS पोर्टल के अंडर ही आएगा। और अच्छा, स्टेट लिस्ट, अब ये इंपॉर्टेंट आ गया, स्टेट लिस्ट आपकी, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, वाटर सप्लाईज, इरिगेशन, कैनाल्स एंड ड्रेनेज। तो हमने कल भी देखा था थोड़ा सा पॉलिटी, अगर हमने देखा होगा, शेड्यूल आपका जो 7 है, उसके अंदर 3 लिस्ट होती थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट
and concurrent list. Okay, so water supplies, irrigation, canals, drainage सारा state list में आ जाएगा. I hope you're taking down notes as well for your own references. अब यूनियन लिस्ट में क्या क्या आ जाता है? अब देखो, जो वाटर का मैनेजमेंट है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आएगा. अब हम ट्रेड के रिलेटेड में भी जब पढ़ेंगे, जो भी दो स्टेट्स के बीच में जो मसला आ जाता है, इंटर स्टेट जो मसले होते हैं, वो यूनियन लिस्ट में आएगा. ठीक है, जैसे इंटर स्टेट कॉमर्स, दैट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट. यहाँ पे भी रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस कम्स अंडर what? This comes under union list. Okay. नेचर रिस्क प्रोफाइल, ये यूएनईपी और एसएपी ग्लोबल का एक इनिशिएटिव है. ये आपको बस यही याद रखना है, यूएनईपी प्लस एसएपी ग्लोबल. ओके. इट इज एम्ड एट एनेबलिंग फाइनेंशियल सेक्टर टू मेजर एंड एड्रेस नेचर रिलेटेड रिस्क फॉर प्रोवाइडिंग साइंटिफिकली रोबस्ट एंड एक्शन. नॉट इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखें कि ये किसने लॉन्च किया, और ये कुमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पे है. ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है, जब हम एनवायरनमेंट में इसको समझाने लगूंगा बहुत टाइम लगेगा. बस इतना समझ लीजिए, जो आईएचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे ना, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, आईएचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स. ठीक है, दिस कुनमिंग मॉन्ट्रियल GBF, this is a successor of the IHE targets. As of now, this should be sufficient for you. When we study environment, we will take that up in detail. Wildlife conservation bond, also known as Rhino bond. तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने किया है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में. बस इतना याद रखें, बाकी इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए. ग्लोबल फाइनेंसिंग एनवायरनमेंट फैसिलिटी का भी इसमें रोल रहा है. और बस इतना याद रखिए, GEF कब बना था? रियो अर्थ समिट. ये अगेन एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है. जब एनवायरनमेंट में हम जाएंगे तब और डिटेल में करेंगे इसको, कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द 1992 रियो अर्थ समिट. सो दैट इज अबाउट इट. मूविंग ऑन, एशियन वाटरबर्ड सेंसस. ठीक है, आपकी जो एशियन वाटरबर्ड सेंसस इंडिया में हुई है इस बार. ठीक है, सिटीजन साइंस प्रोग्राम सपोर्टिंग कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स एंड वाटरबर्ड्स. ठीक है, वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स की कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन. इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं? अराउंड 75 आई थिंक. अपनी अपनी स्टेट में आप देखिए कौन कौन सी स्टेट, कौन सी रामसर साइट्स हैं. विल डिस्कस टुमारो अबाउट दैट. फिर जो एशियन वाटरबर्ड सेंसस है, किसका प्रोजेक्ट है? ग्लोबल इंटरनेशनल वाटरबर्ड सेंसस, कोऑर्डिनेटेड बाय वेटलैंड इंटरनेशनल. और इंडिया में तब शुरू हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस याद रखें. पार्ट ऑफ IWC, इंटरनेशनल वाटरबर्ड सेंसस, कोऑर्डिनेटेड बाय वेटलैंड इंटरनेशनल. ये आप याद रखें थोड़ा. इंडिया में एशियन वाटरबर्ड सेंसस BNHS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना. इंडिया में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी प्लस WI, वेटलैंड इंटरनेशनल. These two bodies coordinate the conduct of Asian waterbird census. Okay, बाकी इसका थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे. It will not be required too much for your exam. Implementation of East Asian Australasian flyway pathway, not important. Voluntary initiative है migratory birds का. अब ये जो CAF है ना, Central Asian flyway, ये कौन सा एरिया कवर करता है? यूरेशिया बिटवीन आर्कटिक एंड इंडियन ओशन. ठीक है, आर्कटिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच का एरिया सारा ये सेंट्रल एशियन आपका फ्लाईवे. ठीक है, इसमें 30 कंट्रीज हैं जनरली. नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप बस ये जो ऊपर बताया आपको, इसको याद रखिए. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया, कुछ स्पीशीज है उनका, जो न्यूज में स्पीशीज आई होती है उसके बारे में पूछ सकता है आपसे. तो आपको बस जो मैं बताऊंगा उतना ही याद रखना है. नाम देख लीजिए, व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई, कहाँ मिली थी? कलियाड केरला में. बस इतना. और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहले मिल चुकी है? अगस्त्याकुदम और शेंडुरनी. ठीक है, ये सारा आपका नीलगिरी के आसपास का एरिया है. अभी हमने कल पढ़े थे शेड्यूल्स, WLPA के. अभी शेड्यूल्स कितने हैं? कमेंट्स में बताएं मुझे, अगर किसी को पता है तो. WLPA के कितने शेड्यूल्स हैं अभी? 4. यस, वंडरफुल. पहले 6 थे, अब 4 हो गए हैं. और शेड्यूल 2 में बटरफ्लाई जो है, शेड्यूल 2 में वो वाले एनिमल्स आते हैं जो लेसर प्रोटेक्शन मिलती है जिनको. ठीक है, ओके. तो along with moths and skippers, they make the Lepidoptera
ऑर्डर। अब तो ये याद रखना कि जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है ये बटरफ्लाईज इसमें आती है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेटर स्काउप। ग्रेटर स्काउप एक डक की स्पीशीज है, बस इतना याद रखना है, ऐसे पूछ लेंगे ग्रेटर स्काउप विच वाज रिसेंटली न्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो डक होती है। कहाँ पे मिली? लोकटाक लेक। अब लोकटाक से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन, इट इज इंडियाज फ्लोटिंग नेशनल पार्क है यहाँ पे, लोकटाक नेशनल पार्क। यहाँ पे जो फ्लोटिंग फोमडीज होती हैं, जैसे अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये समझ लीजिए लेक है, तो लेक के अंदर ये बहुत सारे, ये जो एल्गा होता है ना, ये फ्लोट कर रहा होता है, तो कई बार बहुत इकट्ठा होके यहाँ पे एक आइलैंड सा बन जाता है अंदर, जैसे मजूली आइलैंड है, लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड। तो लोकटाक है जो, इट इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और यहाँ पे आपकी बार्किंग डियर भी मिलती है, बार्किंग और सांगाई डियर, हम इसको सांगाई डियर भी बोलते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। केबुल लमजाई नेशनल पार्क, वही जो लोकटाक मैंने नेशनल पार्क बताया। संगाई और डांसिंग डियर और बार्किंग डियर, फैमिली कौन सी है छोड़ दीजिए, लीस्ट कंसर्न में आता है ये जो संगाई डियर आपकी, लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न अभी क्या है? आईयूसीएन स्टेटस इसका, आईयूसीएन स्टेटस 9 होते हैं, आप मेरे को कल बताएं कि 9 कौन कौन से हैं। एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, कंसर्न, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वो सब आई विल आस्क यू टुमारो व्हाट आर द 9 कंपोनेंट्स ऑफ दिस, ठीक है। नील करुंजी, नील करुंजी एक स्पीशीज है जो ब्लूम होती है हर 12 साल में एक बार। ये क्या है अभी देखेंगे। अभी हमने कल पढ़ा था कि प्लांट्स कौन से शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल 3 ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, शेड्यूल 3 ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड ऑन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स। कहाँ मिलता है ये? आपके शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, और हर 12 साल में एक बार ब्लूम करता है ये नीलकरुंजी, नीलगिरीज में। तो वहां पे कुंथी रिवर के पास, जो केरला की साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास फ्लो करता है, राविकुलम नेशनल पार्क मन्नार के पास। और ब्लू कलर है ना इसका, इसकी वजह से नीलगिरी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा है विच इज व्हाई नीलगिरी इज नोन एज अ ब्लू माउंटेन, बिकॉज ऑफ नीलकरुंजी flowers which bloom every 12 years, so blue in color, ओके। अब राम सेतु, राम सेतु जिसको मैडम ब्रिज कहते हैं, लाइमस्टोन की ये शोल्स हैं पंबन आइलैंड और रामेश्वरम, जो गल्फ ऑफ मन्नार बताया था उसके साथ में, ये वहां पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट तमिलनाडु ने स्टार्ट किया था कि वो कनेक्ट करने का उसको, तो उसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि उसको वो जो राम सेतु उसको तोड़ना नहीं है, जो रिलीजियस एंगल है, बहुत सारी चीजें, तो वो आपको इतना जाना नहीं उसमें, बस इतना याद रखें कि इसका ये लाइमस्टोन शोल्स हैं, these are limestone shoals between Pamban Island and Rameshwar Island. Wonderful. Next, मुनरो थ्रुथु आइलैंड, बस नाम सुनना है आपने। स्टडी बाय सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस, इसने क्या बताया कि मेन रीजन फॉर सिंकिंग ऑफ दिस आइलैंड क्या है। ये कहाँ पे आइलैंड, ये याद रखें, अष्टमुडी लेक और कल्लाड़ा रिवर, केरला। केरला का अष्टमुडी एक लेक है, वहां पे कयाल्स, अष्टमुडी कयाल भी कहते हैं लेक को वहां पे। तो वहां पे रेस होती है, बोट रेस होती है, वल्लम कल्ली कयाल, अष्टमुडी कयाल, यहाँ पे रेसेस होती है। तो ये जो आपका मुनरो थुरुथु आइलैंड है, ये अष्टमुडी और कल्लाड़ी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, ठीक है। तो थनमाला डैम है, अब ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें जब आप पढ़ते हो ना, आपको ये ध्यान देना है कि मेरे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या करना है। अब थनमाला डैम पूछ लेगा वो कहाँ पे है, कल्लाड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये सारा इधर ही है, केरला में है, तो ये आपको याद रखना है, ओके। अच्छा, डार्क स्काई रिजर्व, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या होता है अर्थ में, जैसे इंडिया में भी कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे लाइट पोल्यूशन बहुत कम होती है, जैसे लद्दाख में हैनले वैली है। फिर साउथ में पहला आपका बना है कोडागू डिस्ट्रिक्ट में डार्क, जहाँ पे हम स्टार गेजिंग करते हैं, वी कैन वॉच द स्टार्स। जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में एक होता है ओरोरा, ओरोराज होते हैं, ओरोराज आर नॉर्दर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स। ओरोरा ऑस्ट्रेलिस, ओरोरा ऑस्ट्रेलिस इज सदर्न लाइट्स। फिर अरोरा बोरियालिस, दिस इज नॉर्दर्न लाइट्स।
तो ये कहाँ दिखते हैं? जहाँ पे लाइट पोल्यूशन बहुत कम होगा। अब इंडिया में हेनले वैली, एक आपकी हेनले वैली आ गई। हेनले वैली इन लद्दाख इज द फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। तो ये आपको याद रखना ही रखना है। इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे? हेनले वैली। और दूसरा ताल कावेरी इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट। अब ताल कावेरी किस रिवर का सोर्स भी है, ओरिजिन भी होती है कोई रिवर, वो आप बताएंगे मुझे क्या है? किसी को पता है तो बताएं। डार्क स्काई रिजर्व इज, ये डेजिग्नेशन क्या है इसमें? एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश क्वालिटी ऑफ स्टारी नाइट्स, मतलब पूरा नाइट स्काई आप पूरी क्लियर देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। और जो लाइट की पोल्यूशन है, जैसे जो आर्टिफिशियल लाइट्स भी बहुत कम वहां पे पोल्यूशन रहेगा उसकी वजह से। ओके, तो हम जो लाइट पोल्यूशन है उसको किस स्केल पे मैटर करते हैं? बस वो याद रखना आपने, बॉटल स्केल होता है। बॉटल स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग द लाइट पोल्यूशन। और it measures night sky's brightness on a level, on a 9 level numerical scale, with lesser numerical scale representing darkness. जितना कम होगा 0 to 9, 0 मतलब डार्क है, 9 is bright. Okay, moving on. Another thing in news, Lake Victoria. कहाँ पे लेक विक्टोरिया? Also called as Victoria Nyanza. It is in Tanzania. तो ये याद रखना है, ये सवाल यूपीएससी में तो आते ही आते हैं, आईबी के एग्जाम में भी जाने के बहुत चांस है। लेक विक्टोरिया कहाँ पे है? तंजानिया में है। इसको विक्टोरिया न्यांजा भी कहते हैं, ठीक है। और इट इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका एंड चीफ रिजर्वायर ऑफ नाइल। नाइल रिवर का ये मेन रिजर्वायर है। नाइल रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। 3 कंट्रीज शेयर करती हैं, कौन कौन सी? तंजानिया, उगांडा, केन्या, ठीक है। अमंग द फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज एक्सीडेड ओनली बाय लेक सुपीरियर। तो फ्रेश वाटर लेक्स में नंबर 1 पे आ गया आपका लेक सुपीरियर, and then you have Lake Victoria, which is in Africa. 3 countries: Tanzania, Uganda, and Kenya. और ये नॉर्थ अमेरिका में आप, नॉर्थ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट आ रही है लेक चार्ड। अब लेक चार्ड कहाँ पे है? नाइजर। ये चार्ड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया, ये 4 कंट्रीज साहेल रीजन है। अफ्रीका है ना, अफ्रीका है आपका। ठीक है, अगर रफली हम अफ्रीका का अफ्रीका का अगर हम मैप देखें, ये आपका जो रीजन है ना, साहिल रीजन, तो ये इस एरिया में आपके ये 4 हैं। तो लेक लेक चाड, कैमरून, नाइजर, नाइजीरिया, इनके कॉन्फ्लुएंस में आपको ही मिलेगा। फिर आपको हवाई आ जाइए। हवाई, हवाई कहाँ पे? अलास्का एंड हवाई है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस का पार्ट है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका कनाडा के एलुशन आइलैंड्स के पास है। एलुशन आइलैंड्स। तो हवाईज क्यूलायू वोल्केनो इज एक्टिव शील्ड वोल्केनो एंड इज लोकेटेड ऑन, बस इतना याद रखें आपकी, ये एक्टिव शील्ड वोल्केनो है। शील्ड वोल्केनो क्या होता है? ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, विल स्टडी लेटर। तो ये हवाईन आइलैंड में मिलेगा आपको, ठीक है। अब स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम ऑफ बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। इसका ये एसएलपी प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड्स लेबलिंग प्रोग्राम। इसमें कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट्स कवर होते हैं? पहला सीलिंग फैंस है ना, सीलिंग फैंस। सीलिंग फैंस हैव कम अंडर द एम्बिट ऑफ मैंडेटरी स्टार लेबलिंग। सीलिंग फैंस को भी इस चीज के अंदर लेके आए गए हैं। किस एक्ट के अंडर है? अब एक्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2011। so इसके अंदर इट इज मैंडेटरी फॉर अप्लायंसेस लाइक फ्रॉस्ट फ्री एंड डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी लैंप्स, रूम एसीज, कलर टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, ऑल दीज थिंग्स, इनकी स्टैंडर्ड स्टार लेबलिंग होनी जरूरी है। समझ गए? ओके, अब देखिए वर्चुअल पावर प्लांट्स क्या होते हैं आपके। सो दीज वर्चुअल पावर प्लांट्स आर a network of decentralized power generating units
which pool together thousands of units of energy through electric vehicles or electric heaters. ठीक है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक हीटर्स को पुट टुगेदर करके डिसेंट्रलाइज आप अपना पावर यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। बस इसमें इतना आपको याद रखना है, ज्यादा इसके लिए हम नहीं जाएंगे डिटेल में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के लिए देखिए, पावर की वजह से भी ट्रेजेडी हो सकती है, पावर आउटेज की वजह से आपका जो पावर जो ग्रिड पूरा कोलैप्स कर गया, जैसे मुंबई में वी सॉ बिकॉज ऑफ अ हाईजैक, बिकॉज ऑफ अ साइबर अटैक, तो जो मुंबई का ग्रिड था वो बंद कर दिया गया था कुछ कुछ देर के लिए। दैट इज ऑल्सो अ डिजास्टर। सो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक इन प्लेस होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पावर सेक्टर बनाएगा। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटीज आपको बिल्कुल याद रखनी, सीईए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है, इट रिलीज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर पावर सेक्टर। अगर आपको पूछा जाए कि विच ऑर्गेनाइजेशन और विच डिपार्टमेंट releases the disaster management plan for power sector, so that is Central Electricity Authority. It is consistent with Sendai framework. अब जो डिजास्टर का फ्रेमवर्क है ना, जनरली जापान से हम अडॉप्ट करते हैं। जापान के 2-3 फ्रेमवर्क हैं विच आर हैव बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो पहले था एक आपका हायोगो फ्रेमवर्क था एक, और उसका जो भी सक्सेसर फ्रेमवर्क है इट इज सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि कैसे हम मतलब इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और 4 टियर स्ट्रक्चर है, सेंटर, स्टेट, रीजनल और लोकल यूनिट लेवल पे डिजास्टर को काउंटर करने के लिए। फिर नेक्स्ट आपका आ गया ये ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। तो ये एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, कि इट रेफर्स टू इक्वेटर वर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल्ड डीप वाटर्स, पोल वर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वार्म सरफेस वाटर्स। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, अफ्रीका, जैसे आपका हो गया यूरोप। ठीक है, अब दिस इज योर इक्वेटर समवेयर हेयर। ठीक है, अब क्या होता है, इक्वेटर क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री, 0 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर, पानी यहाँ से गर्म होगा। तो ये पानी आपका इस तरफ जाएगा टुवर्ड्स पोल्स, ये पोल्स हैं आपके, ये इक्वेटर है। तो ये गर्म पानी होगा, दिस विल बी वार्म वाटर। रेड से समझ लीजिए, आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट रेड विज वार्म वाटर, और ब्लू से हम कोल्ड वाटर शो करेंगे। ठीक है, तो ये सरफेस करंट है, ये बिल्कुल पानी की ऊपरली सतह से जाएगा। फिर एक अंडर करंट आएगा, ये सरफेस पे नहीं है, ये नीचे है, ये नीचे वाला पानी है जो नीचे से आएगा, तो ठंडा पानी है। कोल्ड वाटर इज डेंसर, इट सब्साइड्स एंड देन इट फॉर्म्स अ सर्कुलेशन। सो इस तरह की सर्कुलेशन बनेगी। ठीक है, अगर हम देखें, ये ऊपर वाला पानी गर्म, ठीक है, और ये इस तरफ होगा उल्टा करके। ठीक है, ये आपका वार्म वाटर हो गया। ठीक है, और कोल्ड वाटर आपका नीचे इस तरह से। तो ये आपकी एक सर्कुलेशन, एक जायर बन जाती है। तो दैट इज व्हाट इट्स एम ऑफ, कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन एंड हीट among ocean's basins and between ocean and atmosphere. Okay, so it consists of 2 connected overturning cells. Upper cell जो हमने देखा, North Atlantic deep water, and it's shallower from the Atlantic meridional. दूसरा ये lower cell जो नीचे से आ रहा है, that is Pacific deep water. Okay, tectonically driven changes in ocean gateways such as closure of Central Asian, इसको छोड़ दीजिए, ये अभी आपको outside the scope of current affairs रहेगा. It will be a little more deep for you. New plateau type discovered from Maharashtra. ठीक है, a rare low altitude basalt plateau
थाने रीजन में वेस्टर्न घाट्स के ये डिस्कवर हुआ है एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, इट्स अ फोर्थ टाइप ऑफ प्लेट्यू। ठीक है, प्रीवियस 3 आर लेटराइट्स, छोड़ दीजिए इसको। प्लेट्यूज आर डोमिनेंट लैंडस्केप्स इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आपको पता है ना, इंडिया का जो ये गुजरात से नीचे का ये सारा तमिलनाडु तक, दिस इज वेस्टर्न घाट्स। तो इट हैज डोमिनेंट प्लेट्यूज। तो रॉकी आउटक्रॉप्स हैं यहाँ पे, जियोलॉजिकल फीचर्स सब इनके जो यहाँ पे आपका डेक्कन ट्रैप मिलता है आपको, डेक्कन ट्रैप, ब्लैक सॉइल होती है यहाँ पे मेजरली। ठीक है, मेजरली डेक्कन ट्रैप में ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्पीशीज एंडेमिज्म मिलता है। जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उसमें से आपका ये वेस्टर्न घाट्स। एंडेमिज्म क्या होता है कि हाई डेंसिटी ऑफ स्पीशीज मिलेगा यहाँ पे, हाई डेंसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, अलग अलग विभिन्न तरह की स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका हाई एंडेमिज्म है। ओके, फॉरेन फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो अच्छा, फॉरेन फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज है वो इंडिया में अपनी अब इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। ये एक यूजीसी ने एक रिलैक्सेशन दिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि मैंडेटरी यूजीसी अप्रूवल चाहिए पहले 10 साल के लिए। दूसरा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग, ठीक है, उनको अलोक किया गया। एक तो उनको ऑटोनॉमी दी गई किसमें, रिक्रूटमेंट में, फी स्ट्रक्चर में, एडमिशन में। और देखिए जो क्रॉस बॉर्डर फंड्स आएंगे, तो फंड्स आते हैं अब्रॉड से, उनको मैनेज करने के लिए आपके 2 एक्ट्स होते हैं। एक तो होता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक होता है एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो ये हम डिटेल में इकोनॉमी में ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि क्रॉस बॉर्डर ये फंड्स की मूवमेंट को लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रही है नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी एनविसार्ज एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया आपकी 2020 में। इससे पहले 1986 में 2000 आई थिंक 1986 में आई थी। तो इसने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी बात की है। ठीक है, दिस यूनिवर्सिटी विल ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम इट्स पार्टनर इंस्टीट्यूट्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। फंक्शनल मॉडल क्या है, हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक क्या होता है, ठीक है, ये होता है हब एंड स्पोक। और आपने स्वयं के बारे में सुना होगा, स्वयं पोर्टल, एक ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस, एक डीटीएच की तरह स्वयं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट्स। तो ये इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा इसको, और इसमें आप बस इतना याद रखिए। और दूसरा, यूनिवर्सिटी यूजीसी इसको मॉनिटर करेगी। ऑलराइट, ये अब हम एजुकेशन से रिलेटेड कुछ स्कीम्स पर, परख स्कीम है, एनसीईआरटी की है, इंडिया फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर। ये जो एनसीईआरटी ने नोटिफाई किया है, क्या करेगा ये, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो असेसमेंट वगैरह होगी, ये परख, ये जो प्लेटफॉर्म है ये करेंगे किसके अंडर, एनसीईआरटी के थ्रू, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा ये आप छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एनईपी के कंप्लायंट है। इसमें नॉर्म सेट की जाएंगी, गाइडलाइंस होंगी, और ऑल स्कूल बोर्ड्स को इसके तहत चलना पड़ेगा। ठीक है, देन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन किसने रिलीज किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कहा करते थे, इसका भी रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ठीक है, डीसीएफ, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एएससीआर। ये ना एक एनजीओ है आपकी, प्रथम एनजीओ है। ये हर साल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डेटा होता है ना, जैसे कितनी एनरोलमेंट है, ड्रॉप आउट रेट कितना है, जेंडर एनरोलमेंट गर्ल्स की कितनी है, गर्ल्स का ड्रॉप आउट कितना, वो सब इस चीज में देखता है वो। ठीक है, और नेशनल अचीवमेंट सर्वे एक स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको ज्यादा नहीं जाना। अब ये लास्ट टॉपिक लेंगे हम, उसके बाद फिर देखते हैं whether we continue। ड्राफ्ट नेशनल मेडिकल अमेंडमेंट बिल proposes 5th ऑटोनॉमस बोर्ड। ठीक है, क्या नाम दिया इसका, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेस अंडर एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर ना एक ये जो बोर्ड सेटअप किया है। ये क्या करेगा, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप की एक्रेडिटेशन देगा। ठीक है, aims to alter jurisdiction of cases filed by medical colleges in matters related to this under the jurisdiction of Delhi High Court। Delhi High Court के अंडर ही जो भी मैटर्स होंगे ना,
जो मेडिकल केसेस से रिलेटेड सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ही आप देखे जा सकते हैं, ठीक है। इन केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, न्यू प्रोविजन फॉर पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स प्रोवाइडेड बाय मेकिंग एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड और नेशनल मेडिकल कमीशन इज एप्लेट बॉडी। तो अगर कुछ नेग्लिजेंस की वजह से फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है वो सब, तो उसमें एथिक्स कमेटी का एक सेटअप किया गया है इसमें, ठीक है। अब यूथनेसिया लेटर, लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं। मैंने अनम्यूट किया आप सबको। आर यू एबल टू फॉलो व्हाट वी आर डूइंग? Yes, sir. ओके ओके। तो आई थिंक आज हम इतना ही करेंगे बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैव नॉट ज्वाइन। अभी आज हम डाउट्स ले लेंगे, जो इस अभी तक पढ़ा है इसमें कुछ डाउट्स ले लेंगे, और क्लास का टाइमिंग उसके बारे में भी थोड़ा एक सबको जो बेनिफिशियल टाइमिंग है वो डिसाइड कर लेंगे, प्रोबेबली इन इवनिंग। So I think 5 o'clock is fine for all of you. Yes, sir. 5 o'clock is suitable. पाँच Yes. पाँच 5 बजे ठीक है ना? जी सर, जी सर. Okay, okay. And everyone is okay with 5? Yes, sir. Okay. And any doubts? मतलब किस तरह से हम चल रहा है, हमने क्लास से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं आपके तो पूछ सकते हैं अभी, बिकॉज अभी हम लेक्चर जैसे क्लोज करेंगे, हम कुछ डाउट्स ले लेंगे आपके रिगार्डिंग प्रिपरेशन या कुछ भी, जैसे कैसे आगे अप्रोच करना है। If you have any queries as far as that is concerned, we will take up those doubts. Sir, particularly for this exam point of view, how we can just correlate the static topic, particularly GS topic, with the current classes that are going on. मतलब समझा नहीं आपका, मैं सवाल समझ नहीं पाया। सर जैसे कि पॉलिटी सब्जेक्ट ले लें सर, आपने बताया लक्ष्मीकांत सर, मैंने मतलब कुछ चैप्टर्स रीड आउट करें, बट पर्टिकुलरली जो अपन करंट रिलेटेड टॉपिक है सर, उनको ज़्यादा मतलब जो न्यूज़पेपर में फोकस है लास्ट 1 ईयर का, उसको मतलब प्रायोरिटी दी जाए कि सर की जो दोनों दोनों करना पड़ेगा। देखो जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है ना, जी जैसे आपने अगर सिलेबस का पैटर्न देखा होगा तो 60 क्वेश्चन आपके मैथ इंग्लिश लॉजिक से आएंगे, जी 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और जीएस में से आएंगे। जो करंट अफेयर्स वाला है वो अलग हो गया ना। बाकी जो स्टैटिक जीएस है, पॉलिटी के जो हार्डकोर क्वेश्चंस हैं, ऑल्दो वी शुड फॉलो कि न्यूज में क्या चल रहा है, जैसे गवर्नर की रिकमेंडेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज चल रही है, वो फॉलो जरूर करना है। लेकिन कुछ स्टैटिक पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी हिस्ट्री वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो न्यूज में नहीं भी है, क्योंकि सवाल सर आते हैं। सर मैंने क्वेश्चन पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईबी का फेब जो हुआ था 2021 में देखा था सर, मतलब उसमें क्वेश्चंस तो सर बहुत ही हाई लेवल के थे सर, क्योंकि करंट अफेयर्स पर्टिकुलरली उनमें अवार्ड्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। सो हाँ, वो पूछेगा, मतलब वो भी पूछेगा, वो भी पूछेगा। जी हमें देखो थोड़ा होलिस्टिक कवर करना पड़ेगा, हर तरह से हम कोशिश करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज करेंगे, क्योंकि टाइम भी कम है, और ये है कि स्टैटिक को इग्नोर भी नहीं कर सकते ना। तो हम जी कोशिश करेंगे जितना जो रिक्वायर्ड चीजें हैं ना स्टैटिक में, हम जिससे हमारा काम चलेगा, जिससे हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, हम वो चीजें पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो अप्रोच अप्रोच यही रहेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या है, अभी हमने जनवरी से स्टार्ट किया है, और ऑलमोस्ट जनवरी 1-2 दिन में शायद हो जाएगा। इस तरह से यस बाकी आगे आने वाले जो चैप्टर्स है वो भी हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, बीच में एमसीक्यूज भी डालेंगे, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम एग्जाम की नीड्स को सूट करके आगे बढ़ते जाएं। पीडीएफ में आपको दूंगा अभी, बिकॉज अभी आप पहले जो क्लास में फॉलो कीजिए और साथ में स्टैटिक पढ़ते रहिए। स्टैटिक का जी क्या पढ़ रहे हैं आप, जीएस में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? सर, आपने लक्ष्मीकांत का स्टार्ट करने को तो सो वहां से स्टार्ट किया सर। जी लक्ष्मीकांत कर लिया ना? जी और बाकी लोग क्या पढ़ रहे हैं? Sir, I'm studying history now. Polity मेरा हो चुका है. ओके ओके, वंडरफुल। हिस्ट्री में भी आप थोड़ा सा सिलेक्टिव करें, जो बताया था आपको Yes, वो sir. चीजें 1885 ऑनवर्ड्स या 1857 ऑनवर्ड्स। और एक लूशियन की किताब भी मुझे लगता है ले लीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा फैक्चुअल भी पूछता है। सारे हर चीज के लिए आप प्रॉपर बुक्स पढ़ के कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाएंगे, है ना। हर चीज के लिए अगर हम स्टैटिक पूरी प्रॉपर किताब उठाएंगे, इट विल बी डिफिकल्ट, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, तो वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो। तो एक लूशियन की किताब ले लीजिए, साइंस वगैरह हम थोड़ा वहां से कवर करेंगे,
और जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी के जैसे कुछ जिन लोगों ने कर लिया है तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसे प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है या प्रियम्बल वाला है, जैसे हमने देखा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हम वही चीजें थोड़ा ज्यादा फोकस करके करेंगे। पर्पस हमारा रहेगा कि हम किस तरह से मैक्सिमम रिटेंशन कर सकें। तो आइडिया विल बी दैट। ओके, तो ठीक है, जो आप हिस्ट्री आपने स्टार्ट किया वंडरफुल, आप कंटिन्यू करें उसको जीएस के साथ साथ, वो भी करेंगे करंट अफेयर्स के साथ, है ना? एनीवन एल्स हैज Yes, एनी sir. एनीवन एल्स? सर और क्या साइमल्टेनियसली हम लोग की अप्रोच होनी चाहिए सर? नहीं, आप मैथ्स वगैरह भी साथ में थोड़ा करते रहे। मैथ्स वगैरह कैसा है आप लोग का? सर बस क्वांट्स पर्सनली मेरा सर थोड़ा सा वीक है सर। वीक है, ओके। और बाकी जी लॉजिक वगैरह ठीक है? जी सर, रीजनिंग वगैरह जी सर। आपने क्वेश्चंस देखे हैं किस तरह के मतलब आ रहे हैं? यस सर, मेंसुरेशन मतलब वहाँ पे सिलेंड्रिकल मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं सर। हाँ, तो मैं आपको वही कहूंगा, जैसे क्वेश्चन देख के ना आप कुछ जो फॉर्मूलाज वगैरह वो थोड़े से देखने पड़ेंगे, और प्रैक्टिस करें। मतलब डेली आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटा उसको दे दीजिए, मैथ्स को दे दीजिए, लॉजिक को दे दीजिए, और इंग्लिश के लिए भी थोड़ा थोड़ा कीजिए। मैथ्स लॉजिक को ज्यादा फोकस करें, इंग्लिश तो आप लोग कर लोगे, इंग्लिश का इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। मैथ्स जी लॉजिक पे एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स दे दो उसको, और अनदर 2 to 3 आवर्स, 3-4 आवर्स इसको इसको ज्यादा देना पड़ेगा जीएस को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, कवरेज ज्यादा है ना इसकी। यस सर। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, कोई नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे। अभी हम टेम्पो बन जाएगा थोड़ा सा विद इन 4-5 डेज, फिर थोड़ा सा हम लंबी क्लास भी करेंगे। मे भी दिन में 2 बार भी क्लास कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। वीकेंड्स पे वी कैन डू ट्वाइस अ डे। ऑब्जेक्टिव यस ये रहेगा कि जितनी जल्दी हम क्लास सिलेबस खत्म करें, और रिवीजन भी साथ साथ में, टेस्ट भी लेते रहेंगे बीच में। हफ्ते 10 दिन में जब एक कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हमें एमसीक्यूज का एक टेस्ट भी ले लेंगे, है ना? जी सर। ठीक है गाइस, वंडरफुल। आई थिंक इट वाज डिसेंट वन। टुमारो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे 5 o'clock। विल टेक एन लॉन्ग क्लास टुमारो, 5 to 7 में भी विल टेक, है ना? तो अभी यहाँ क्लोज करते हैं। ओके गाइस, यस थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच सर। See you Thank see you, you at sir. 5 tomorrow. Okay, thank you so much. Thank you everyone.